और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है 7 प्रायोरिटीज फॉर इंडियाज गवर्नमेंट इन 2025 वांटेज विद पलकी शर्मा। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। What's on your bucket list for 2025? Maybe that dream holiday or getting in shape or learning a new musical instrument? The new year is the best time to make a list of things to do. So we thought, why not do the same for India? We've got 7 items on this list. Things we think should be on the government's mind this year. The first is normalizing cryptocurrency. Let's face it, the crypto bros had the last laugh in 2024. Bitcoin crossed $100,000 after Donald Trump won. He's got big plans for cryptocurrency. He wants to turn the US into the world's crypto capital. Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. We're not saying do the same in India, but at least do more. Right now, crypto profits are taxed at 30%, which is a lot higher than stocks. So the government is basically saying, be careful here. Be wary of cryptocurrency. That attitude certainly needs to change. Crypto may not replace currencies, but it has become an increasingly accepted form of investment. So it's time to normalize it. Of course, that also means appointing a regulator, a headmaster to keep things tidy. Right now, crypto is regulated by virtually everyone, by the Reserve Bank of India, by the Securities and Exchange Board or SEBI, and by the Finance Ministry. I'm afraid that won't cut it. You need a dedicated regulator to build confidence, preferably someone who doesn't have to Google what is cryptocurrency. Item number 2 is a bit more serious. Building up air defenses. We kept hearing about Israel's Iron Dome last year. Does India need one of those? Well, our country is 300 times bigger than Israel, so a dome may not be practical, but we do need more air defenses. Recently, India has started buying such systems from outside, like the Barak and Spider from Israel and the S-400 from Russia. Some air defenses are also being built at home, like the Akash and Prithvi. But 2 things to keep in mind here. The first is the quantity. You saw the aerial attacks from Iran last year. It wasn't 1 or 2 drones, it was literally hundreds of them. So you need air defenses in bulk, something that the Air Force Chief has also pointed out. तो एक कॉम्बिनेशन जो है इसका मिला के हमारे पास जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम होंगे वो फेयरली कॉम्पिटेंट होंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नंबर्स हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे इन टर्म्स अगर हमें सब कुछ प्रोटेक्ट करना है। Second, you need to be smart about it. Countries are firing dirt cheap weapons nowadays. An Iranian drone costs around $2,000. Do you really want to shoot it down with $1 million weapon? It's not viable for a country like India. We don't have allies giving us billions in military aid. Our defense budget is mostly salaries and pensions, so it's important to be smart and strategic. And speaking of strategy, do you know who wrote India's National Security Strategy Doctrine? You don't, because we don't have one. And that is item number 3. India should codify its National Security Doctrine. Most of the big powers already do it. The US, the UK, Japan, Russia, all of them publish and update their National Security Doctrine. Think of it as a guidebook. It tells you what your interests are, what are your biggest threats, who are your partners, and what is your approach to long-term security. India has tried to make such a document multiple times, the most recent being in 2018. But each time the effort failed. Foreign Minister S. Jaishankar was asked about the need for such a document. His response, if I tell you, I have to kill you. Every country has its own way of communication, its own way of policy formulation. Because somebody else puts out a document every 3 years or 4 years and says that is my national security, it is not necessary I follow that model. I could have it, I could tell you that it exists, but I have to kill you if I tell you. Flexibility is the upside, but the downside is confusion. A written policy makes it easier for different agencies to make decisions. It puts everyone on the same page. I'll give you an example. Last year, India's Finance Ministry called for more investments from China. It said we cannot shut off Chinese businesses. The same year, India's Defense Ministry issued a directive. It said, do not use Chinese parts in drones. Now, if you follow geopolitics, the differences may be obvious. But if you don't, it can be confusing. A written national security policy could avoid such confusions. It would also add continuity to decision making.
Next is item number 4, sports infrastructure. India is officially bidding for the 2036 Olympics. I know it's 11 years away, but for an event like this, 11 years is nothing, because it takes time to build world-class facilities. Right now, only 10% of India's sporting infrastructure meets the Olympic standard, so major upgrades are necessary. And this is after you win the bid. To win, you need to make a strong case. You must showcase your cultural heritage, you must invest in grassroots sports, and you must present an impressive plan. All of this starts with good infrastructure. Just look at the 2028 Los Angeles Games. The city is not building a new games village. Instead, athletes will stay at the University of California, and they're not building dozens of new stadiums. They are refitting venues used by local football clubs. That is the future of the Olympics. Not massive Colosseum-style stadiums, but multi-purpose structures of the highest quality. And speaking of quality, item number 5 is education. We keep hearing about India's demographic dividend, but that dividend depends on the quality of our population. Let's look at the numbers first. Around 24% of our population is under 14 years of age. That's around 330 million children. If we train and educate them, great. We'll have a strong workforce for the coming decades. But if we don't, it could drag our growth story down. So 2 things must be done on priority. The first is spending more. We spend around 4% of our GDP on education. The target should be around 6%. This money can be used to upgrade our schools. We're talking better services, cheaper meals, more teachers. Apparently, there are 1 million teaching vacancies in Indian schools. You need to pay well to fill them up. This money can also be used for education loans. You see, most Indian colleges are now private, which means you need to pay a higher fee. If you cannot afford that, you could try for an education loan. Just one problem though, only 4% of India's higher education students have availed a loan. Experts talk about a number of challenges like higher interest rates or unfair eligibility criteria or long drawn-out application times. Perhaps the government could ease things out for them. Which brings us to the second priority, that is the quality of education. There is an urgent need to revamp the syllabus. We are seeing new technologies like artificial intelligence and 6G. It is important to add that to the syllabus, to gear education towards jobs. If not, you will have educated unemployment. In fact, that is the situation right now. Jobless rate for graduates is almost 30%. But it's only 3.4% for people who cannot read or write, which is simply unacceptable. Education should be an asset, not a liability. Now we are down to the last 2 items. Number 6 is reaching out to Africa. That is the missing piece in India's foreign policy. Africa is home to resources worth trillions of dollars. This includes strategic minerals like cobalt, nickel, and manganese. These can be used for making semiconductors and batteries, which is why there's a race for Africa. China, Europe, America, all of them are looking to secure their interests. India too has a sizable footprint, but a lot more needs to be done. India and Africa started a summit back in 2008. It was supposed to be held every 3 years, but the last one was held in 2015. Since then, no summit has been held with Africa. 0 summits in 9 years. Guess how many China held in this time? 4 summits. And this shows in trade numbers too. China's trade with Africa is $282 billion. India's trade is just $100 billion. So the first priority is to hold that summit, to show Africa that India is interested. And the focus should go beyond just pumping money. Because let's face it, if it's a battle of wallets, India cannot beat China or the US. So New Delhi should offer something extra. For example, its lessons on digital economy, or paperless delivery of government schemes, or electronic payment systems like the UPI, or even healthcare services. India is known as the pharmacy of the world, and Africa faces medicine and vaccine shortages. It's a challenge that India should take on. Thankfully, New Delhi seems up for it. We saw an indication of that at the 2023 G20 summit. India led the push to give permanent membership to the African Union. That move has given us a lot of goodwill in the continent. The key is to build on that. Which brings us to our final item. It's something Indians have been asking for a long time. It's also something that ordinary Indians deserve. A tax cut. Indian consumer spending has fallen since the pandemic. As a result, GDP growth also fell. The projection was 7% in the last quarter, but the actual rate was 5.4%. If you want to kickstart spending, you need a tax break.
And it's only fair. Less than 2% of Indians actually pay income tax, which is mostly the salaried middle class, and they're also paying GST along with others. It's too much pressure on one group, especially when their employers have it so good. I'm talking about Indian corporates. They're making more money than ever. Yet income tax collection is higher than corporate tax collection. Imagine that. Ordinary taxpayers are contributing more than companies. How do you expect people to have disposable income? How do you expect them to spend more? The way we see it, a tax cut is the best bet. Let's see if the government agrees when the budget comes out. But frankly, some of these other items are non-negotiable. It's about national security, about the future of our children, and also our livelihoods. Ideally, they shouldn't wait until the new year to work on these, but if a to-do list helps, why not? भाई एक चीज़ जो मेरा भी मानना है कि भाई हर चीज़ में जो है ना हर टाइम बेहतरी की गुंजाइश जो है वो रहती है, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स को जो है ना वो इन चीज़ों पर काम भी जो है वो करना चाहिए। ऑल्दो अगर देखा जाए तो भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो काम कर रही है वो अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ जैसे बीच में जो है बहुत सारी और चीज़ें भी जो है बताई गई कि भाई इन चीज़ों पे भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने 7 पॉइंट्स को ब्रेक डाउन किया और बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे उनमें बेहतरी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक मीडिया का ना पर्पस यही होता है कि आप ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करो जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको किस किस सेक्टर में और काम करना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए, वो चीज़ें आप डिस्कस करें, ना कि ऐसी ही डिबेट्स आप करते रहें कि बस जिसमें जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं और आप उनको ही डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मैं ये बात बोलूँगी कि ये जो हम लोगों ने 7 पॉइंट्स देखे हैं, अगर हम लोग ओवरऑल देखें, उन्होंने डिफेंस की भी बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, उन्होंने स्पोर्ट्स की बात की, उन्होंने इकोनॉमी की बात की। आप ऑलमोस्ट के साथ जो है जो किस तरह से ट्रेड किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, या जो ऐसे कंट्री जैसे अफ्रीका की बात उन्होंने की कि पोटेंशियल है वहाँ पर, किस तरीके से उसको मजीद आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ओवरऑल उन्होंने हर चीज़ को आप कह लो कि इसमें डिस्कस किया है। अच्छा, वैसे जो है क्रिप्टो करेंसी की जो है बात की गई, वैसे तो डिजिटल करेंसी जो है माना जाता है उसको, और बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ भाई कुछ कंट्रीज जो है वो टैक्स जो है वो लगाते हैं। पाकिस्तान में भी जो है वो इस पे टैक्स जो है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में उसकी रेशियो नहीं मालूम कितना है, लेकिन इंडिया में 30% जो है वो एक काफ़ी हैफ्टी टैक्स जो है वो माना जाता है। तो जैसे अब यूएस की बात की जाए तो भाई ट्रम्प जो है उन्होंने कल ओथ जो है वो ले लिया हुआ है, और वो क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ की और बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो होने वाली है। भाई दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी की जो एक स्ट्रेटेजी का जिसका जिक्र जो है वो किया गया, मैं भी वैसे फर्स्ट टाइम जो है वो सुन रहा हूँ, मुझे जो है इस चीज़ का जो है वो आइडिया नहीं। शायद जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं या डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो नॉलेज भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो शायद उस वजह से जो है मेरा उस पर जो है वो आइडिया, मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है इस सेक्टर के बारे में। बाकी ये कि जो हम लोग जान पाए हैं इस वीडियो के छोटे से सेगमेंट के माध्यम से, वो यही है कि आपके जो गाइडलाइंस हैं उनको मतलब जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स हैं, या मे बी उनको सबको डॉक्यूमेंट्स करना होता होगा शायद कुछ इसी मुझे तरह का वैसे जो है इतना वो पता नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर बताइएगा। और मैं साथ में ये भी पूछना चाहूँगी कि साथ में जो डॉक्टर एस जे शंकर जी ने जो एक लाइन बोली है बीच में, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या मीनिंग है, वो मुझे नहीं समझ आया। हाँ। अच्छा, वैसे एजुकेशन की, भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, हालांकि हम कहते हैं कि भाई साउथ एशिया में वन ऑफ द बेस्ट है, वहाँ पर आपको जो साउथ एशिया से बहुत सारे, क्योंकि सार्क कंट्रीज़ की जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है इसको भी लेकर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से वो आते हैं इंडिया में, उनके अफ्रीका से भी जो है वो लोग जो हैं वो आते हैं इंडिया में पढ़ने। लेकिन उसके बावजूद जैसे जो है बीच में बताया गया कि भाई उसे अपडेट करने की जो है वो ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सिलेबस में डालने की ज़रूरत है जो टाइम के साथ जो है वो चल रही हैं। बिल्कुल, एंड सीरियसली ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि मतलब अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ हमारे यहाँ पर जो एक एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत पुअर है। लाइक अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं, इंडियन लोगों को देखते हैं, तो हमें बहुत हाईली एजुकेटेड वो लगते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर एक पढ़ाई को लेकर मतलब आप कह लो कि आप एक कल्चर देखते हो या उसका एक ट्रेंड देखते हो कि लोग जो हैं वो किस तरीके से टेस्ट वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, माँ बाप का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है।
तो ये चीज़ें आपको नजर आती है। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि देखो आप उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं, आपको उससे भी बेहतर चीज़ चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे मौसम ने स्टार्टिंग में बोला कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, और आप अपने एजुकेशन पर जितना ज़्यादा खर्च करोगे, जाहिर सी बात है आप उतने ज़्यादा अच्छे आप कह लो कि ऐसी जनरेशन्स तैयार करोगे जो आपकी कंट्री के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्योंकि अभी मैं ये बात सोच रही हूँ कि इंडिया में एजुकेशन से लोग इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है जो भी वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, बट उसके बावजूद तुम ये देखो कि पूरी दुनिया में जो CEOs आपको नजर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा आपको इंडियंस की ही नजर आती है। बिल्कुल, असल में स्टार्टअप कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेवरेबल है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टअप कल्चर के साथ साथ जो है ना टैक्स इश्यूज भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बन जाते हैं। लोग जो हैं वो टैक्स बचाने के लिए जो है बहुत सारी ऐसी जो है वो हरकतें करते हैं कि भाई टैक्स जो है वो ना जो है वो पे करना पड़े। हाँ नहीं, मैं बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी, अमेरिकन कंपनीज की बात कर रही हूँ जहाँ पर CEOs आपको इंडियंस नजर आते हैं। तो अभी मैं कह रही हूँ कि एजुकेशन का जो भी लेवल है इंडिया में और लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो मे बी यहाँ पर जो जिक्र है वो गवर्नमेंट सेक्टर का किया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो जैसे आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। गवर्नमेंट सेक्टर में यूजुअली ये रहता है कि वहाँ पर बहुत ही हालात जो है वो अजीब से होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते कि बच्चों का किस तरीके से एक आप कह लो कि सारा सिलेबस लेकर चलना होता है। तो अभी मतलब सैलरी वगैरह वहाँ पर कितनी होती है ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देखती हूँ यहाँ पर तो यार सही होती है सैलरी, मतलब मुझे तो उनकी सैलरी, हाँ इंसेंटिव्स भी साथ में उनको मिल रहा होता है। इवन के मतलब एक प्राइमरी की टीचर है, मुझे अच्छे से याद है उनकी अभी 80K है। लेकिन अगर उसे करेंसी के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करके देखें ना, तो उस लिहाज से आप इन्फ्लेशन वगैरह भी एडजस्ट करके देखें तो आपको वो जो है ना ओके लगती है। मौजम मैं तुम्हें यही बात कर रही हूँ, देखो 80,000 पाकिस्तानी रुपीज है उसकी सैलरी, और उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है। नहीं वो इंसेंटिव्स डाल की होगी इतनी, मुझे नहीं वैसे फिर पता, ठीक है पता नहीं, बट हर महीने उसके 80,000 उसके बैंक में आते हैं, ठीक है ना, उसकी सैलरी। तो फिर भी मुझे वैसे उसके लिहाज से सही लगती है, क्योंकि जो उसका लाइफस्टाइल है और जैसे मतलब वो लोग लेकर चलते हैं चीज़ों को, तो मतलब वो उनके अकॉर्डिंग बहुत वो एक बेहतर जो है आप कह लो कि लाइफ गुजार रही है। सो मुझे इंडियन गवर्नमेंट जो टीचर है उनका नहीं पता कि उनके कितने हैं। मान लो अगर 20K भी है तो फिर तुम ये भी तो देखो ना, चीज़ों का भी तो एक फ़र्क है ना, यहाँ पर इन्फ्लेशन और इंडिया में इन्फ्लेशन का भी तो डिफरेंस है। बिल्कुल। फिर उसके बाद भी टैक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे नेशंस जो हैं वो आप देखते हैं कि भाई इनकम टैक्स वहाँ पर जो है वो बिल्कुल नहीं था। बाकी वो टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स जो है या दूसरे वैट वगैरह वो आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, GST देखने को मिलता है, लेकिन जो है भाई इनकम टैक्स जो है वो नहीं देखने को मिलता। तो उसका जो है ना मेरा ख्याल है पब्लिक की पॉकेट पर जो आम मिडिल क्लास है बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट जो है वो करती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं महीने अगर 10,000 कमा रहा हूँ, उसमें से अगर मैंने 1,000 रुपया गवर्नमेंट को दे देना है इनकम टैक्स के तौर पर, तो वो 9,000 रुपये में मुझे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर रातों रात कहती है भैया आज से इनकम टैक्स ख़त्म, ठीक है ना, मेरे पास 1,000 रुपया और जुड़ जाएगा, वो चाहे मैं सेविंग में डालूँ या कहीं और खर्च करूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ही घूमता रहेगा। खुशियाँ चेक करो मौसम की क्या है यार देखें ये एक इफेक्ट जो है वो पड़ता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे UAE की बात करें या आप जो है माल्टा की बात करें, वहाँ पे और भी बहुत सारे टैक्स हेवन कंट्रीज जिन्हें जो है वो कहा जाता है, वहाँ पर नहीं आपसे टैक्स लेते। बिल्कुल, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी जो उनके मुताबिक हमें तो टैक्स देकर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। मैं तो ये बात सोचती हूँ हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ से लेकर शुक्र करे साल बाद एक सड़क मिल रही है, कपड़ों की चीज़ों से लेकर मतलब कोई भी आप अगर जैसे ऑनलाइन भी चीज़ें खरीद रहे हो, कुछ ऑनलाइन आप खाने की चीज़ भी ऑर्डर कर रहे हो, उस पर भी आपको डबल टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। लेकिन ये कि सुविधाएं नहीं है। लेकिन वैसे ये मेरे को हैरानगी है कि सिर्फ 2% जो हैं वो मतलब इंडिया में लाइक जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर वो टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। वैसे मौसम पाकिस्तान में कितने % लोग जो है वो पे कर रहे होंगे? पाकिस्तान में भी आसपास और मैं ये बात सोची पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो लोग टैक्स पे नहीं करते, टैक्स चोरी कर दे। एग्जैक्टली। और मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से सही वाला टैक्स कलेक्ट किया जाए, मतलब विदाउट सेटलमेंट वाला टैक्स किया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद फिर जो मिडिल क्लास बंदा है ना उसकी जेब पर थोड़ा कम बर्डन हो। मतलब तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो है ना जो बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं उनके पीछे
पीछे जो होते हैं वो भी फिर बहुत बड़े बड़े जायंट्स होते हैं। True, तो ये कहीं ना भी है। कहीं वो जायंट्स मिलके ना फिर वो सारों को, क्योंकि डायरेक्टली हाँ। इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो ये सब एक दूसरे से तालमेल इनकी हुई होती है। हाँ। एनीवे गाइस, काफी अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे और बीच में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगी कि जहां पर पलकी शर्मा मैम ने बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी कि वो एक पॉइंट हाँ जो रखा। और अगर हम लोग देखें तो मोटेरा स्टेडियम जो है हाँ। वो हम लोगों को काफी, मैं कहूंगी कि इस लिहाज से नजर आता है कि वो मल्टीपर्पज स्टेडियम जो है एक तरह से उसको यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उसके अलावा और कौन सी चीज़ें आपके नज़दीक जो है वो ऐड होनी चाहिए, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें ना तो यहाँ पर तो हर चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हर साइड पर आपको गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है कि भाई वो काम करे। और इसी के साथ ही मजाज भान वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब वीडियोज़ शेयर, बाय।